हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। एंड आज का एपिसोड जो है वो है शेयर मार्केट पे। सो बेसिकली शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, इतनी सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं कि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सो आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो मिस्टर शैलेश शेट्टी हैं आज के स्पीकर, एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल कोच जो कि लोगों को सिखाते हैं कि कैसे शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में यू कैन मेक योर मनी, या फिर यू कैन लाइक अपने पैसे को आप काम पे लगा सकते हो। कैसे कहते हैं ना, पैसा सिर्फ पहले जमाने में मटके में हम रखते थे तो उतना ही पैसा रहता था, बट नाउ वी हैव टू मेक आवर मनी वर्क टू इंक्रीज इट। सो आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनके साथ मिलकर हम यही बात करने वाले हैं। बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं। एंड बिफोर दैट आई लाइक टू इंट्रोड्यूस की शेयर मार्केट कोई गाइस ऐसे डरने वाला नया वर्ड नहीं है जो आजकल अचानक से ट्रेंड में आ गया है। शेयर मार्केट लगभग 400 साल से भी पुरानी चीज है। जब लोग शिप से नई नई दुनिया दुनिया का भी मैप नहीं आया था तब से ये शेयर मार्केट चल रहा है। बस हमको ये कितनी एजुकेशन नहीं है उसकी वजह से हम इससे डरते हैं, और जितना प्रॉफिट हम ले सकते हैं कई बार उतना नहीं लेते हैं। अब डेफिनेटली ये हमारे भी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए इसी बारे में हम आगे बात करेंगे और अपना इंट्रोडक्शन शैलेश जी खुद देंगे। सो ऑल ओवर टू मिस्टर शैलेश शेट्टी। हेलो शैलेश सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you, Ankita ji, for having me on your channel. थैंक Talk यू। about myself, right? Yeah, I'm born and brought up in Mumbai. So, my parents are from Karnataka. So I did my schooling and everything here. Did my computer engineering from Mumbai University. Was working in IT for almost like 20 years. So for the first 10 years, I was in India. Then I, was traveling around the Asia Pacific. So I lived in Japan, Taiwan, Singapore, Thailand. So I was in Singapore for 14 years. I loved the country. So it was a very safe place. Uh, Plus, you get Indian food, Indian culture, and also plus, it's English speaking as well. So plus, you have Indian friends around. So that was the best part. So yeah, home away from home, and plus, it's best part of it's only 4.5 hours away from Mumbai. So Yes. it was, so yeah. So my wife and kid are still in Singapore. So my Okay. daughter is studying there. So yeah, so it's a good thing. But my yeah, 20, so while I was in Japan, I read this book called Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. So Yes. so it was basically it told us that you need to actually if you are doing a job, you are in a rat race, right? And even if you win the rat race, you're still a rat. Yes. So so the thing is because you know your no matter how much, of course, people in sales make a lot of money. Yes, people in IT also make a lot of But money. still, they Yes, have lots of pressure, which ultimately comes down to your family when you come back home. right, right. And it is the growth is still very linear, and your boss decides how much income you make. Right? Correct. Correct. Even if you're the top performing salesman, it's not entirely in your hands, right? You don't decide it. So that's exactly when I read that book, it hit me that you are in the wrong game. So, but anyways, I was not so convinced. I said, okay, अभी overseas आप हो, आप dollars में कमा रहे हो तो क्या Yes. problem Exactly. है, right? Who thinks about that? So exactly, and you are in the comfort zone. भाई job चल रहा है तो Hmm. आराम से तो कोई क्या बात है. But this financial freedom thing was there at the back of the mind. So while I was in Singapore, I did a course with a multi-millionaire called Adam Khoo. So he has a portfolio of like $50 million. So I did this initial course from technical analysis course from his academy. So that is when I was investing in the stock market even before that, but it just happens that just like looking at channels or looking at money control, reading there and seeing which stocks are doing well and just investing without any proper study. But when I did this course, that's when I actually understood that there is a way to invest in the look at charts and basically decide when is the best time to enter the market, when is the best time to exit. And Yes. so right, so looking at that taught me that there is a way to approach it systematically. And that's what I've been doing. But again, that's only 20% of the skill, right? The 80% of the skill is the mindset, which only develops along the way, True. right? The True. patience, that's what I said, the fear and greed part, right? That's the emotion which you have to keep in your control. So even if your technical analysis, everything is correct, right? So the thing is, you will still make mistakes because your suddenly stock is going up, so you will feel that, अरे भाई और जाएगा और जाएगा और जाएगा, so you will keep it.
right? You will keep riding it, right? And then finally the stock crashes, and then you will hope that okay, अभी गिरा है, डर लगता है, ठीक है, but अभी और जाएगा करके you will wait, but Yes. it keeps on falling, and then you will have fear. Now it is in loss. Now you don't want to exit, right? So this fear and greed are still emotions which you need to control. So that's why it's very much necessary that you learn the technical skills at the same time you learn to manage your emotions in the market. Why only share market? Like you wanted a job or a business wherein you don't have that, pressure of job, but why only share trading? Why you have seen a scope in share trading? Because there are already so many people doing it. So this is the only business which you can do from the comfort of your home, right? Yes. You no matter where you're traveling. Okay. See, you can do okay, you can do YouTube, you can these days, of course, you can be a YouTuber, right? But even there, you need to build that content. It takes over time. Money does not come overnight. No, exactly. You need to put give the right content. You need to train yourself, right? All of that requires an effort and you need to build a customer, subscriber base, after which your channel becomes monetized, right? So it's Yes. a passion, right? So same way. So for me, it is more about financial freedom, right? So Correct. the freedom to do things, no matter where I'm in the world, and basically for passive income, the money for which you do the work once, but the money keeps on coming to you, in tranches, right? Keeps on coming continuously. So the whole thing in that book, if you read the book Rich Dad Poor Dad, you will see that there are two kinds of income primarily. One is the active income and the other is the passive income, right? Yes, So exactly. active income मतलब ये है कि जिसको सैलरी होती है हमारी, या जो जिसके लिए हम एफर्ट डालते हैं Yes. उसको मिलता है, उसको हम Yes. एक्टिव इनकम बोलते हैं। जबकि पैसिव इनकम वो है जो आपको एक बार आपने किया उसका रिटर्न आपको आते रहता है, इससे True. आपने इन्वेस्ट किया या फिर आप तो उसका रिटर्न आपको जो पैसा आता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम, राइट? या Correct. आपका घर का एसेट है, आपने घर रेंट पे चला दिया, आपका रेंट आ रहा है हर महीने, तो दैट इज मनी वर्किंग फॉर यू। So this is the people who are the multi-millionaires in the world or billionaires, they became that not by working for a job. They became that because they learned how to make money work for them, right? And Yes. this is the best thing which you can do. So where you don't even need to, interact with anyone. You can just sit in just need a laptop and a internet connection. You can just do it, and you can. And today with Google, YouTube, and all the resources at your display, even AI, you are at the click of a button. You have all the information you need, right? And you can Yes. decide, and you are your own boss, right? You are your own boss. You can do it whenever you want. Today you don't want to do anything, you can just sit there. If you're a long term investor, you just buy your stocks and just wait for them to compound, right? तो इसमें जो पैसा बनता है, अभी ये यूट्यूब चैनल में आप नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूसली कंटेंट डालते रहना है Right. आपको, Right. Right. right? लेकिन आप अगर अच्छे स्टॉक्स डालते हो, राइट, फॉर एग्जांपल जैसे आपका रिलायंस का स्टॉक है, या रिलायंस और इन्फोसिस 20 years ago, राइट? So the people who became multi-millionaires just because of that one stock, राइट? True. इवन Yes. पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, राइट? लोगों ने अपने बच्चों की शादी करा दी उसमें, मतलब स्टॉक्स पे की वजह से। So that is the biggest kind of example which we have, right? Any other Yes. job, any other business will not give you that kind of a comfort. I have a YouTube channel called Stock Market 123. So anybody who's a beginner in the stock market can always watch them. I'm coaching people on stock trading as well, Okay. Okay. mainly on technical analysis. तो Okay. या तो आपने जो शुरू में जो कहा ना, आई मीन देर आर टू इमोशंस बेसिकली विच आर एसोसिएटेड विद द स्टॉक मार्केट, फियर एंड ग्रीड। ओके, तो पहला जो इमोशन है वो है ग्रीड, क्योंकि फटाफट पैसे बनाना है। तो दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल कम टू द मार्केट विद दैट, बिकॉज दे हर्ड फ्रॉम इन द मीडिया, और हर्षद मेहता का स्कैम हो गया, ये हो गया, Yes. हर्षद एंड केतन पारेख का स्कैम हो गया, तो और इतने पैसे बनाए, ये सब सुन के आते हैं, तो ये उनको लगता है कि वो भी बड़ा पैसा बना सकते हैं, तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, लोन लेते हैं, बड़ा लोन लेते हैं, और पैसा इन्वेस्ट करते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि स्टॉक मार्केट क्या है, राइट? कि वो कंपनी कैसा है, राइट? तो ये किसी ने कह दिया, किसी ब्रोकर ने कह दिया, या किसी मीडिया चैनल पे सुन लिया, राइट? ऐसे ऐसे लोग पैसा अपना जीवन भर की कमाई डाल देते हैं, या फिर लोन लेकर डाल देते हैं। तो क्या होता है अल्टीमेटली, आप जैसे ड्राइविंग करते हो, अगर आपने सीखा नहीं और आप जब गाड़ी चलाओगे, एक्सेलरेटर करके जाके पैर दोगे, तो डेफिनेटली वो क्रैश होगा। तो क्या Accident. आपको सीखना है, राइट? तो वो जाके उधर एक्सीडेंट होगा ही।
तो आपको उसलिए ये है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है पहले मेंटर, और आपको इमोशंस को ड्राइविंग करते हो तो आपको अपने इमोशंस भी कंट्रोल में रखने हैं। यू हैव टू, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, यू हैव टू स्टे फोकस, पेशेंट रहना है, राइट? सो इट्स द सेम गेम दैट इज देयर इन द स्टॉक मार्केट, ओके? So you should not succumb to these two emotions, which is fear and greed, right? So long as you keep these two emotions in control, you will be able to successfully ride and survive. And if you survive in the stock market, you will make money. That is the whole point. लेमन लैंग्वेज में इफ वी टॉक अबाउट शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड, बिकॉज इंडिया में अभी भी इतना होने के बाद भी पीपल थिंक कि गोल्ड तो चाहिए ही। जब गोल्ड का हमारा कोटा हो जाएगा उसके बाद विल थिंक कि म्यूचुअल फंड करेंगे कि शेयर मार्केट करेंगे। Right. So after this, we'll definitely come and talk about what Mr. Salih Shetty is doing in his model for like training people in share market and how they can earn from share trading. So before that, we'll get this and description about the share market, mutual fund, or gold thing. Just an idea for the audience. Thank you. Right. Okay. Good question. I mean, that you have why share market, when you have other asset classes and all, right? पैसा तो आप कैसे भी बन सकते हैं, बिल्कुल। तो the thing is, the first of all we have to talk about is इन्फ्लेशन या महंगाई, जिसको हम सिंपल टर्म से बोलते हैं महंगाई, राइट? Yes. तो अगर आप जो है, हमारा जो सिंपलेस्ट वे है, हमारा तरीका कि पैसे ले वो बैंक में डाल दो, उसमें इंटरेस्ट आएगा, सेफ है हमारा, राइट? लेकिन आज आप देखो, आप बैंक में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। इंडिया में आपको मैक्सिमम जो मिलता है 5 to 7% मिलता है, एफडी में आप डालो तो। सेविंग्स अकाउंट में तो वो भी नहीं मिलता, 3% होगा शायद, 3% या 3 मैक्सिमम, राइट? तो ये आपको वो आपका जबकि आपकी महंगाई जो है साल के 10% से ज्यादा है। हाँ। तो अगर आपने वही पैसा आपने बैंक में भी बैंक में अगर एफडी में भी रखा, तो वो है ना, आप वो आपने जो 1 लाख रुपए रखा है, वो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू एक्चुअली वो 1 लाख, अगर आपको 7% मिलता है तो भी आपका 1,07,000 होगा, जबकि आपकी महंगाई 1,10,000 होगी। तो Correct. जो चीज आप 1 साल पहले खरीद सकते थे, वही आप नहीं खरीद सकते अभी आप, क्योंकि उसके दाम बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या है कि आप, ये तो मैंने 1 साल की बात की, 10 साल बाद आप देखिए, तो मतलब आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं सिर्फ आप एफडी में रखें, राइट? हमारे पेरेंट्स की माइंडसेट ये थी कि हम एफडी में रखो तो पैसा सेफ है और वो पैसा इंटरेस्ट मिलता है, बट लेकिन Yes. वो उनको ये नहीं पता था कि ये महंगाई जो है इससे ज्यादा हो रही है, तो आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो गिर रही है, राइट? तो हमको इसलिए क्या करना है, हमको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चाहिए जो हमारी महंगाई के रेट से ज्यादा हो, राइट? तो कम से कम हमारी जो इंडिया में जो है इन्फ्लेशन ऑन ग्राउंड जो है 10% के ऊपर ही है, राइट? तो हमको जो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जो 10% से ज्यादा हमको है, राइट? तो उसमें है फर्स्ट गोल्ड। गोल्ड जो है आपको ये 12% कम से कम, अगर आप लास्ट 15 ईयर्स का पकड़ते हो आप, तो 10-12% तो आपको रिटर्न दिया है। तो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट उस तरह से है, गोल्ड अच्छा है, 12% का रिटर्न आपको एनुअली दे सकता है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है, एक तो गोल्ड की क्वालिटी प्योरिटी आपको पता नहीं, आप True. जिस प्लस उसकी मेकिंग और जो चार्जेस है उसमें उसका हेयर कट होता है, तो उसमें क्वालिटी चेंजेस होंगे, बाइंग के टाइम में आपको अलग कट होगा, सेलिंग के टाइम में आपको होगा, प्लस आपको जब चाहिए तब आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए। प्लस आई वुड लाइक टू ऐड एट दिस पॉइंट दैट इन इंडिया इफ यू सेल योर गोल्ड व्हाट योर नेबर विल से। जब गोल्ड कब बेचता है आदमी, जब बिल्कुल कुछ नहीं बेचता तब लाओ भाई घर का सोना। तो वी डोंट टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट, वी बाय इट एज अ इन्वेस्टमेंट, बट वाइल यूजिंग इट वी थिंक यार ये तो बच्चे का, ये हम कैसे बेच सकते हैं, बट हमने लिया इन्वेस्टमेंट सोच के था वो। सो ये करेक्ट, इंडियन सेंटिमेंट में ये भी वो है कि हम गोल्ड को यूज ही नहीं करते हैं कभी थ्रू आउट आवर लाइफ। करेक्ट। हमारे लिए वो सिक्योरिटी है, गोल्ड को हम यस। मेजर बोल सिक्योरिटी बोल के देखते हैं। तो मतलब अगर कोई एकदम बहुत नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाए, कुछ और नहीं है, तो भाई उसको कम से कम एटलीस्ट उसके अगेंस्ट लोन ले लो, गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले लो। आजकल गोल्ड लोन भी अवेलेबल है, तो ये बेसिकली थॉट प्रोसेस होता है, राइट? बट अगेन वो आपका गोल्ड की वैल्यू से कम ही मिलता है आपको लोन, राइट? हाँ जी। आपकी गोल्ड की जो वैल्यू है वो आपको फुल नहीं मिलती, राइट? सो दैट इज द होल थिंग कि हर एक इन्वेस्टमेंट के की जो एवेन्यूज है उसके साथ में प्रोज एंड कॉन्स एसोसिएटेड है। दूसरे हैं, उसके अलावा है अभी जो बॉन्ड्स भी हैं, अभी आपको जो बैंक्स हैं और कॉर्पोरेट कंपनीज भी आपको बॉन्ड्स इशू करते हैं, जिनकी रेट्स जो होती हैं स्लाइटली बेटर होती हैं कंपेयर टू एफडीज, राइट? तो बॉन्ड्स आपको 10 से 12% अभी आईसीआईसीआई बॉन्ड्स मिलते थे, एचडीएफसी के बॉन्ड्स हैं, कंपनीज भी इशू करती हैं बॉन्ड्स। तो ये लेकिन तो बैंक के बॉन्ड्स जरा स्टेबल है, मतलब इट्स मोर लाइक एन एफडी ओनली, लेकिन आपका पैसा वो 3 साल के लिए वो लॉक हो जाएगा, या 1 साल के लिए लॉक हो जाएगा, 1 से 3 साल के होते हैं, तो वो लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको एंड ऑफ द डे मतलब उसके बॉन्ड के इंटरेस्ट मिलते रहेंगे, कूपन इंटरेस्ट मिलता रहता है, राइट?
तो ये आपका हो गया बॉन्ड विच इज स्लाइटली बेटर देन द नॉर्मल एफडी रिटर्न्स, राइट, यस। जिसमें प्रोवाइडेड कि वो जो है कंपनी अगर कोलैप्स नहीं हो जाए या बैंक कोलैप्स नहीं हो जाए तो आपके बॉन्ड्स के एंड पैसे इट इज सेफ डूइंग हैं। वेल, मतलब और, एवरेज, और, अबव एवरेज। और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है कंपैरेटिवली, राइट। तो ये हुआ बॉन्ड्स। तो क्योंकि बैंक्स और ये इसलिए उठाते हैं ताकि उनकी कैपिटल वो ये पैसे उठाकर वो इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में या दूसरे लोन्स देने के लिए वगैरह। तो इसलिए वो कंपनीज और बैंक से पैसे उठाते हैं जनरल पब्लिक से। अभी इसके अलावा है आपके पास म्यूचुअल फंड्स। अभी म्यूचुअल फंड्स जो है ये भी स्टॉक मार्केट्स पर ही मोस्टली जो बेस्ड होते हैं, मतलब स्टॉक्स के की जो एक बोलते हैं ग्रुप, एक फंड मैनेजर होता है जो स्टडी करता है स्टॉक मार्केट में बेस्ट कंपनीज को, और उसको ग्रुप करके वो उसको मैनेज करता है कि कौन सी कंपनीज बेस्ट है, उनको बेस्ट कंपनीज को अपने को एक पोर्टफोलियो बनाता है। और उसके हिसाब से जैसे वो, तो उसकी एक नेट एसेट वैल्यू डिसाइड होती है कि ये ना ये इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की, उसको भी वो यूनिट्स में डिसाइड डिवाइड करते हैं, राइट। तो उसकी एक एसेट नेट एसेट वैल्यू होती है, तो जिसके बेसिस पे आप बाई कर सकते हो, उसके यूनिट्स बाई कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या है कि आपका रिस्क कंपेयर टू शेयर मार्केट कम होता है क्योंकि ये ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, यस। राइट, क्योंकि वो ग्रुप ग्रुप किया हुआ है। और वो मैनेजर जो है वो एक्सपर्ट है इसमें, तो वो मैनेज करता है। लेकिन क्या अगर आप देखें, अगर इन जनरल more than 50 to 70% of the mutual funds are not even able to beat the index returns। अभी इंडेक्स क्या है हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो यस। यस। ब्रॉडर मार्केट का जो बेंचमार्क है उसको भी बीट नहीं करते। तो इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड, जब आप म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं तो आपको देखना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्मेंस है और उसी में डालना चाहिए, राइट। तो ये तभी है जब आपको म्यूचुअल फंड, जब आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं पता है, राइट, और आपको बेटर रिटर्न चाहिए, राइट, तो आप इसमें म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगेन लास्ट 15 साल में म्यूचुअल फंड्स ने करीबन 13 से 18%, 20% का रिटर्न दिया हुआ है, राइट, इंडियन यस। मार्केट्स में, राइट। तो आपको, अगर आप इस रिटर्न से खुश हैं, आपको स्टॉक मार्केट में आपको डर लगता है अगर कि पैसा डूब जाएगा, तो आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट, कंपाउंडिंग, यस। जहाँ पे आपको आपको समझने की जरूरत नहीं है, खाली आपको इन्वेस्ट करना है। तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, या तो एक लमसम डाल सकते हो या तो आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी माने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप ईएमआई की तरह आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसे डालते रहोगे, राइट। तो वो आपका पैसा कॉर्पस बन जाएगा, राइट। तो ये है म्यूचुअल फंड्स का। अब ये जो है सबसे बेस्ट लेकिन जो है रिटर्न्स वो आपको देता है स्टॉक मार्केट। यस। स्टॉक मार्केट अगर आप इंडियन इंडियन स्टॉक मार्केट अगर आप देखो, बेंचमार्क इंडाइसेस हैव गिवन मोर देन 15% रिटर्न्स in the last 20 years on of course it's not every year, but on an average if you take the compounded annual growth rate बोलते हैं CAGR, तो उतना स्टॉक मार्केट ने दिया है रिटर्न्स। और किसी किसी ईयर आप देखोगे इंडेक्स हैज गिवन मोर देन 30% रिटर्न्स इन सम ईयर्स, राइट। So the thing is because it is the stock market goes up and down in waves, right? तो ये आप ये नहीं सोच सकते कि ये हर साल आपका बनेगा। लेकिन आपको यस। एक कम से कम 3 साल का नजरिया रखना चाहिए कि आज अगर मैं स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक खरीद रहा हूँ, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, राइट, तो 3 साल का नजरिया रख के आप इन्वेस्ट करो, तो आपके डेफिनेटली बेटर रिटर्न्स बनेंगे। तो आपके एक रियलिस्टिक रिटर्न आपको अगर देखना है तो आपको कम से कम 25% का टारगेट रखना चाहिए कि अगर साल के मेरे 25% बनते हैं, राइट, तो देन इट मीन्स मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट डायरेक्टली। ट्रू। लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक्स को स्टडी करना होगा। स्टॉक्स की बैलेंस शीट होती है, तो स्टॉक्स के पीएनएल स्टेटमेंट होते हैं, कंपनीज जो होते हैं अंडरलाइन। अभी स्टॉक्स जो है वो क्या होता है, अभी ये जो कंपनीज जो होती है उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, यस। राइट। तो वो क्या करते हैं कि या तो वो जाके लोन्स उठा सकते हैं कहीं से, या तो वो क्या करेंगे कि ब्रॉडर मार्केट में जाएंगे, दूसरे इंस्टीट्यूशन से आप या तो पैसे उठाएंगे या तो पब्लिक के पास आएंगे, जनरल पब्लिक के पास। तो जनरल पब्लिक से पैसे लेते हैं तो उसके बदले आपको क्या देते हैं, आपको स्टॉक, आपको कंपनी में एक हिस्सा देते हैं। तो उस हिस्से को हम शेयर कहते हैं, राइट। तो आप कंपनी जैसे मुनाफा बनाएगी तो उस मुनाफे का एक हिस्सा आपको मिलेगा, राइट। तो इसीलिए आप वो जो आपको मुनाफा मिलता है वो आपको डिविडेंड के तरीके से मिलता है, राइट। तो आपको, आपने देखा होगा जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है वो हर साल डिविडेंड देती हैं, हर क्वार्टर में डिविडेंड अनाउंस करती हैं, राइट। सो दिस इज द कंपनीज वे ऑफ रिवॉर्डिंग द शेयर होल्डर, राइट। उनके प्रॉफिट में से वो शेयर जो है वो वापस शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो
ये एक तरीका है। अभी ये जो है, अभी जो ये कंपनीज जो पैसा एक बार उठा लेती हैं, लेकिन अभी क्या होता है कि मार्केट जो है उसमें सेंटिमेंट जो है, इमोशन जैसे होता है, इमोशंस जो है अप एंड डाउन जाते रहते हैं। इकोनॉमी है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, वॉर्स है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि और क्रूड ऑयल प्राइसेस, हमारे यहाँ पे तो इंडिया में 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, राइट। तो क्या होता है कि ये जो सारे फैक्टर्स, जब क्रूड ऑयल के पैसे दाम ऊपर जाते हैं, तो इट अफेक्ट्स द करेंसी वैल्यू ऑफ द कंट्री, राइट, क्योंकि आपको ज्यादा पैसे देने होते हैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, राइट। तो इकोनॉमी का जो वैल्यू है वो डाउन जाता है, तो इसलिए स्टॉक मार्केट जब जब भी क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाता है तो कंपनीज की अर्निंग्स कम हो जाती है, राइट। तो इसके लिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, राइट, क्रूड ऑयल गया ऊपर गया तो आपके जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो सारे चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, तो कंपनीज की अर्निंग्स कम हो जाती है, अनलेस यस। दे पास ऑन दैट टू दैट कस्टमर। तो ये जो है वो एक विशियस सर्कल है, राइट। तो जो कंपनीज कस्टमर्स को वो पास ऑन कर सकती है, अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती है, उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। लेकिन जो कंपनीज इन्फ्लेशन को अपने जो जो जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो अपने कस्टमर्स को ये पास ऑन नहीं कर पाते, राइट। हम्म। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कंपनीज के जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऊपर नीचे जाते रहते हैं। राइट। इसीलिए उसके हर क्वार्टर में कंपनी को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है, राइट। तो उसके हिसाब से जब मार्केट को पता चलता है कि ये इस क्वार्टर में कंपनी के अर्निंग्स अच्छे नहीं आने वाले, तो वो पहले से आप देखोगे वो रिजल्ट आने से पहले मार्केट गिरा देता है स्टॉक को, गिरत। राइट। तो न्यूज़ तो बाद में आती है पहले, लेकिन स्टॉक पहले ही गिर जाता है। स्टॉक गिरते तो हैं। यस, यस, यस। सेम सेम वे सेम वे अगर कंपनी अच्छी कर रही है तो अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, तो आप देखोगे शेयर उसके रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले हम्म। स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो एक दैट बस आ इज जाती है कि वो वाले शेयर्स खरीद लो, आप वो बढ़ने वाले हैं, और इट हैपेंस। Yes, yes. So this is why there are a lot of people who just work only on these news tips and बोला, लोगों ने बोला खरीद लो, तो जाके खरीद लेते हैं। And यस। that is why scams also happen, क्योंकि there are a lot of fake news also happening, and राइट। and then a lot of manipulations also happen. There are people who have who जो लोग सर्कुलर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जानबूझ के पंप और डंप करते हैं, तो यस। ये भी होता है, राइट। जहाँ पे ऑपरेटर्स बोलते हैं उनको कि वो जानबूझकर लोगों प्राइस बढ़ाते हैं ताकि लोग खरीद ले, तो बाद में जब भाव ऊपर चला जाता है तो वो अपने सारे शेयर बेच देते हैं, एंड देन पीपल यस। वंडर व्हाट हैपेंड, राइट। क्योंकि आपने देखा नहीं कि कंपनी कैसे कर रही है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, कंपनी का पास परफॉर्मेंस कैसा रहा है, राइट। आपने स्टडी नहीं की है कि आगे भी इकोनॉमी कैसी होने वाली है, या कंपनी कैसे रिजल्ट देने वाली है, उनके उनके जो एनुअल रिपोर्ट्स आपने पढ़े नहीं। नहीं। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको बोल दिया, आपके ब्रोकर ने बता दिया या किसी फाइनेंशियल प्लानर ने बता दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें, तो अल्टीमेटली दैट इज व्हाट रिजल्ट्स इन अ लॉस। अगर आपका स्टडी किया हुआ है स्टॉक और वो गिरता भी है, लेकिन आपको पता है कि ये कंपनी का जो अर्निंग्स है या बिजनेस जो है ये बढ़िया है, तो ये थोड़ा बहुत टेम्पररी शॉर्ट टर्म में शायद गिरेगा, लेकिन ऊपर जाएगा आगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का इंडिया ग्रोथ कर रही है, एज अ होल कंट्री इंडिया इज ग्रोइंग, एटलीस्ट द नेक्स्ट 20 years इंडियन इकोनॉमी इज रोबस्ट, गवर्नमेंट इज गुड, राइट। तो जो गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रही है, डिफेंस में डेवलप कर रही है, पावर जनरेशन में इंप्रूव कर रही है, हम्म। राइट। तो ये सारे जो फैक्टर आपको आपको अपने अगल बगल में दिख रही है, राइट। तो ये आप देखो और उसी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो, वहीं उसी जगह में आप पैसा लगाओ। आप अगर सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे बनेंगे बिल्कुल। राइट। सो मुझे जो समझ में आया अब तक के डिस्कशन में, वो है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फेलियर है, दैट इज रिजल्ट ऑफ अनएजुकेशन इन दिस फील्ड। पीपल डोंट नो अबाउट द इन एंड आउट्स ऑफ द थिंग, एंड दे जस्ट किसी के सजेशन पे, जो कि सजेशन देने वाला भी सही या गलत हो सकता है अपने एजुकेशनल बेसिस पे, कि उसको शेयर मार्केट का कितना नॉलेज है। तो फेलियर के चांसेस तभी होते हैं जब वी आर नॉट एजुकेटेड अबाउट द शेयर मार्केट। सो बेसिकली मुझे अभी तक ये समझ में आया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वॉरेन बफेट, तो उनके बारे में तो हर जो भी फाइनेंस के सेक्टर में काम करता है, दे रीड अबाउट हिम। सो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि इट डजेंट मैटर कि आप जो काम कर रहे हो आपको आता है या नहीं आता है, राइट। आपको वो काम नहीं आता है, इट्स ओके, बट योर फोकस शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि आप उस काम के थ्रू क्या करना चाहते हो। सो बस अब हम ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे थे कि आप कोच करते हो लोगों को अबाउट शेयर ट्रेडिंग,
सो एज अ इन्वेस्टर ऑल्सो वो शेयर ट्रेडिंग उनके काम आ सकती है, और एज अ पैसिव इनकम जैसे कि आपने बोला, एज अ पैसिव इनकम भी वो, या फिर एक्टिव इनकम, अगेन इसमें भी दो थॉट्स हैं। सम पीपल थिंक कि ये नो ग्रेविटी चीज होना चाहिए, एक अपना इनकम चालू रहना चाहिए और ये साइड बिजनेस रहना चाहिए। एंड सम पीपल थिंक कि आई विल डू इट फॉर होल ऑफ द डे, आई इन्वेस्ट इन दिस ऑल्सो। सो दोनों ही केस में आप किस तरह लोगों को गाइड करते हैं, एंड हाउ यू हेल्प पीपल टू मेक मनी थ्रू शेयर ट्रेडिंग? That's again a very good question. So, right, so there are two main ways of making money in the stock market. One is called trading, which is more short term, okay, and the other is investing, which is medium term to long term. अभी शॉर्ट टर्म बोलते हैं तो वो शॉर्ट टर्म विद इन अ डे हो सकता है, तो अप टू 3 मंथ्स हो सकता है, जबकि मीडियम टर्म आपका 3 मंथ्स टू 1 ईयर होता है, एंड मोर देन 1 ईयर यूजुअली वी कॉल इट लॉन्ग टर्म. Okay. So this is the basically, so anytime any although we say investing, but most of us are actually trading because we हम लोग खरीदते इसीलिए कि हमको बेचना है, right? But राइट। generally we call more than one year. If you are keeping, you are called as an investor. If you are keeping it for less than 1 year, you are more of a trader, right? Because you are buying, making profit and selling. So then you are a trader. So अब आपने वॉरेन बुफे की बात की, तो वॉरेन बुफे, if you ask him, he says, when is the best time to sell a stock? He says, almost never, because he knows that the company is continuously making profits and it will continue to go up. So he will never sell that share unless he sees that कि उस कंपनी में कुछ तो गलत हो चुका है, गलत हो गया है, या कंपनी में अब वो बात नहीं रही जैसे पहले वो ग्रो कर रही थी. So these are the only times when you will sell that stock. So as the same as a long, so for a long term investor, आपको पहले डिसाइड करना है पहले कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो या शॉर्ट टर्म बनना चाहते हो. अगर आप बोलते हो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, देन यू शुड सी कि इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करना है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट? ये कंपनी का जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, ये ग्रो हो रहा है क्या? लाइक अभी इंडियन गवर्नमेंट में जो है डिफेंस इज प्लेइंग अ वेरी बिग पार्ट. तो डिफेंस यस। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पावर जनरेशन की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. तो ये इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, और ये इसके साथ में ये उस जो इंडस्ट्री में ये कंपनी है, तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ये कंपनी भी ग्रो करेगी, राइट? और ये इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इस मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑनेस्ट, एंड लुक एट द पास्ट परफॉर्मेंस की इसने ये कंपनी ने कितने मतलब कितने सालों से प्रॉफिट बना रही है. तो जितने कम से कम कंपनी ने लास्ट 3 साल में 5 साल में प्रॉफिट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 साल में आपको देखना है कि कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं. ऑन एन एनुअल बेसिस इफ द कंपनी इज ग्रोइंग, उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रही है, तो ये आपको पता चल रहा है. तो आप उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, इस कंपनी इज ग्रोइंग, सो आई कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, ये सब. तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग. यस। बैलेंस शीट, पीनल स्टेटमेंट, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग. और मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं वो लोग यही करते हैं कि कंपनी अच्छी कंपनीज को देखते हैं, उनकी बैलेंस शीट स्टडी करते हैं, उनकी पीएनएल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं, और उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि उसके पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखते हैं. ये सारी चीज को स्टडी करके डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, राइट? और तो ये हुआ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग. अगला होता है, और दूसरा एक ये हो, उसको बोलते हैं टेक्निकल इन्वेस्टिंग, जो मैंने बताया कि चार्ट्स जो देखते हैं, तो इसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं. तो टेक्निकल एनालिसिस में ये आपको ये फायदा है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट जब ओवरऑल मार्केट जब गिर रहा है, तो आप यू कैन सेव योर प्रॉफिट्स एंड सिट ऑन द साइड लाइन्स. ये बेनिफिट है क्योंकि टेक्निकल सबको बताता है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, यस। राइट? क्योंकि आपको जैसे जैसे आपका ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो आपको पता चलता है, राइट, कि इसमें कि ग्रीन माने गो, तो मार्केट इज पेंडिंग, सो यू कैन गो फुल 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 स्पीड, राइट? ऑरेंज मीन्स गो स्लो, राइट? मार्केट साइडवेज जा रही है, एक ही रेंज में अटकी हुई है, तो स्लो जाओ या रुक जाओ, राइट? रेड माने कंप्लीट स्टॉप, मतलब डाउन ट्रेंड जा रही है तो यू हैव टू स्टे अवे, राइट? तो टेक्निकल एनालिसिस करने का फायदा ये है कि आप यू कैन डिसाइड व्हेन टू बी इन द मार्केट, व्हेन टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट. तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, वो मोस्टली चार्ट्स को स्टडी करते हैं, राइट? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब भी आप चार्ट स्टडी कर सकते हो, इससे आपके रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं. हाँ, तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको डेफिनेटली चार्ट स्टडी करनी चाहिए. यस, यस। सो आप जो ये अपना कोचिंग मॉड्यूल रखते हैं, सो उसमें बिगनर्स के लिए व्हाट यू
पैक, लाइक आप चार्ट रीडिंग की जो बात कर रहे हैं, मैंने बस वो चार्ट्स, मैंने फिनेंस में हो के भी आई वॉज इनटू इंश्योरेंस, तो वो चार्ट मुझे सिर्फ देखे हैं, मैंने ऑब्जर्व किए हैं, बट उसको कैसे अपने लिए वर्क करना है, उसको वर्क करवाना है अपने लिए, वो नहीं पता है मुझे। तो एज अ बिगनर बिगनर अगर आपके पास कोई ऐसे हाउसवाइफ या कोई ये मॉड्यूल ज्वाइन करते हैं, सो कैन शी रीड दोज चार्ट्स एंड डिसाइड कि इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज प्रॉफिट लॉस शीट्स और ये सब रीड करना सब सब नहीं कर सकते ये। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो मैं मेरा जो कोर्स है, राइट, इसमें मैं मिक्स ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल इन्वेस्टिंग सिखाता हूँ। ओके। राइट। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पर फोकस नहीं करना है। आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि राइट। आप बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करो। राइट। तो आपका स्टॉक अच्छा है तो आपको पता है कि अगर ये शॉर्ट टर्म में नीचे गया तो भी ये वापस रिकवर करेगा। राइट। तो इसलिए क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स होनी चाहिए, तो ये एक चीज है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, उससे लेकर देखें। और उसमें आपको, ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू गेट चार्टर्ड अकाउंटेंट टू गेट इनटू अ बैलेंस शीट। राइट। एग्जैक्टली। उसमें उसमें आपको तीन चार मतलब जो पैरामीटर्स हैं, जो मेन पैरामीटर्स हैं, उनको देखना होता है, स्टडी करना होता है कि ये क्वालिटी है या नहीं और इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। तो अगर वो आपके जो क्राइटेरिया में बैठते हैं तो आप उनको सेलेक्ट करोगे, नहीं होता है तो नहीं करोगे। तो ये टिपिकल सिंपल सा जो है 1 2 3 काइंड ऑफ चेक्स आप कर सकते हो, उसमें चेकलिस्ट बना के ओके। आप फिल्टर कर सकते हो उसको। उसके लिए टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में। राइट। तो आपको हर एक स्टॉक को लेकर स्टडी करने की, इनडेप्थ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा मतलब 15 20 मिनट भी अगर आप स्टॉक को लेकर आप चेक करते हो पैरामीटर, तो आपका काम बन जाता है। राइट। तो ये है ऑफकोर्स। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो स्टॉक, तो आपको ज्यादा डीप स्टडी करनी होगी। लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उतनी डेप्थ में स्टडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेक सेंस। ओके। तो आपको सिर्फ देखना है कि वो पैरामीटर सिंपल, जैसे है ना कि सिंपल क्वालिटी चेक्स आपने कर दिए तो आपको मालूम है कि ये कंपनी स्टेबल है, फ्रॉड नहीं है। राइट। तो ये कंपनी इतने साल से परफॉर्म कर रही है, तो ये आपने बेसिक चेक्स कर लिए, तो आप इसमें शॉर्ट टर्म में पैसा लगा सकते हैं। राइट। तो आपने ये स्कैन कर लिया। उसके बाद में आप इंडिकेट टेक्निकल में आप इंडिकेटर देखते हो, जैसे कि आपका ग्रीन सिग्नल है या ऑरेंज सिग्नल है या रेड सिग्नल है। जब आपको पता चला कि ये ग्रीन सिग्नल है, तभी आप एंट्री लोगे वो स्टॉक में। और आपने डिसाइड करना है कि आपके डेस्टिनेशन कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है। राइट। तो आपका डेस्टिनेशन आ गया तो आप वो टारगेट मीट हो गया, आप एग्जिट कर दो। राइट। या फिर अगर समझ लीजिए आपका वो टारगेट मतलब वो स्टॉक टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया मतलब, तो आपने डिसाइड कर लिया, तो आपने उसको होल्ड नहीं करना है, आपने डिसाइड करना है कि आप मैक्सिमम कितना लॉस आप एक्सेप्ट करोगे। राइट। यस। तो आपने ये डिसाइड कर लिया तो क्या होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये स्टॉक में डाला है, अगर ये 10% से ज्यादा गिरता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये तो मतलब मैंने टक्कर मेरे मेरी मेरी एनालिसिस रॉन्ग थी, या फिर मेरी एंट्री की टाइमिंग रॉन्ग थी, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। राइट। तो आपने सिर्फ 10% लॉस, आपका आपने 10,000 लगाया, तो सपोजिंग 10,000 लगाया था तो 10% लॉस हुआ तो आपको सिर्फ 1,000 रुपया लॉस हो गया। राइट। यस। तो तो आप सिर्फ तो आपके कैपिटल फिर भी आप 9%, 9,000 आपके पास अभी भी है। तो ये जो है ना, दिस इज द सिंगल बिगेस्ट रीजन वाई पीपल यू नो डोंट मेक प्रॉफिट्स इन द मार्केट, बिकॉज दे नॉट एबल टू बुक अ लॉस। यस। क्योंकि लोगों को लॉस, एंड वो 1,000 का लॉस आपका कब 5,000 10 बन जाता है पता नहीं चलता। और आप जितना लंबा आप होल्ड करोगे उतने ज्यादा आपके लॉसेस होंगे। राइट। तो आपको वो थ्रेशोल्ड रखना है, आपको सीखना है कि कितना आपको रिस्क मैनेज करने सीखना है। राइट। ओके। तो आप जब आप रिस्क मैनेज करते हो और उसको मतलब जब मार्केट मार्केट के कंडीशंस अच्छे हैं, आपको पता है अगर ओवरऑल मार्केट ही डाउन जा रही है तो आपको कोई तो आपका स्टॉक डेफिनेटली नीचे जाएगा, मोस्ट 99% नीचे जाएगा, unless it is a very strong stock and it is able to defy that overall market trend. एंड मेनी टाइम्स आई फील दैट पीपल हैव इंटरेस्ट इन शेयर मार्केट, उनको वो अट्रैक्ट करता है, एंड दे हैव इंटरेस्ट इन कैलकुलेशंस एंड मनी मैनेजमेंट, बट उनको लगता है कि पता नहीं मेरी एजुकेशन, मेरी नॉलेज उस लायक है कि नहीं, मैं इतने बड़े बड़े टर्म्स समझ पाऊंगी कि नहीं, समझ पाऊंगा कि नहीं। सो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा क्लियर बताएंगे उसके लिए क्या एजुकेशन मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि मिनिमम क्या नॉलेज एक बंदे को होना चाहिए टू गेट इनटू
शेयर ट्रेडिंग, या फिर वो किसी और के लिए शेयर ट्रेडिंग करके अपने पैसे बना सके इसके लिए? मेरी बेटी 16 ईयर ओल्ड है, ओके। राइट, और उसके अभी स्कूल हॉलीडे चल रहे हैं। तो मैंने उसको बोला है कि भाई ये वीडियोस ले लो और इनको देखो। वो स्टडी राइट। करती है, और वो इनफैक्ट मेरे साथ डिबेट भी करती है नाइस। कि आप टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हो, क्यों नहीं करते। वॉरेन बुफे डज फंडामेंटल एनालिसिस, देन व्हाई आर यू गोइंग फॉर टेक्निकल एनालिसिस? I mean, these या। kind of the debates are we are having. तो 16 ईयर ओल्ड कैन डू इट, तो हम और आप तो कर ही सकते हैं। तो हाँ जी। सो कोई भी मतलब it is so simple that even a school going kid can do it, right? Of course, come with do possible training. Give yourself at least 6 months time to study, एंड मतलब आप में ऑफकोर्स मेरी ट्रेनिंग तो 10 आवर्स की सेशन है, तो ओके। मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एट योर ओन comfort as many times as you want. The more you see, the better, because every time you will learn something new. The same thing. Even I go through my own videos, so I look at some, I get a different perspective looking at my own videos. Like, अरे हाँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये ऐसा भी चलता है, because you are evolving and there are certain things which you might have missed out in the previous time you see. So it's a continuous learning process. So you don't become an expert in a day. लेकिन जैसे जैसे टाइम आप दोगे, जितना आप रिपीट करोगे, जैसे आपने स्कूल किया 10 years किया, you did not finish your 10 years plus 6 years of college education, right? 16 years आपने दिया, तब आप जो बने आज, वो बने हो आप, right? राइट। And even जॉब में भी आपने काफी कुछ नया नया सीखा. It's a continuous learning process. The same in the stock market. You have to give yourself time to get the skills, come to a good level, there to make money. It's not that day one आप पैसा बनाओगे, you will make a lot of mistakes, right? And you should be prepared to do that. इसलिए start small. Don't put big money in entirely. Start small, यस। make mistakes, use it as a की cost of India. It's a piece of the market, right? ऐसा सोच के जाता है, लॉस होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो उसको, और रिकॉर्ड करो, खुद लिखे रखो कि आपने क्या मिस्टेक्स किए, जो जिसको बोलते हैं जर्नलिंग, दैट्स अगेन थिंग, जैसे आप डायरी लिखते हो, राइट? यस। तो आप रिकॉर्ड करो कि आपने क्या गलती की, कि आपने क्या नहीं करना चाहिए था. नेक्स्ट टाइम यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ इन योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग प्रोसेस. तो ये है. प्लस हमने इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स, अभी स्कूल में हमने सिंपल सिंपल इंटरेस्ट सीखी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखी थी, दिस 7 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स. तो इसमें आपको बैलेंस शीट देते, मैंने बोला सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स, 7 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सबको पता है, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो. आपको परसेंटेजेस मालूम होना चाहिए, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, राइट? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. अगर अब नहीं पता है, तो मैं जस्ट फॉर द पीपल और ऑडियंस आई विल टेल यू. आपने सपोजिंग 1 लाख रुपया बैंक में रखा 1 साल भर के लिए, राइट? तो आपको 10% का सपोजिंग इंटरेस्ट मिलता है, सपोज, राइट? तो 1 लाख का हो गया आपका 1,10,000, राइट? करेक्ट। समझ लीजिए आप 10,000 आपने निकाल लिया, और उस 1 लाख को आपने और कंटिन्यू किया और वापस एफडी में डाला, राइट? तो आपको अगले साल वापस मिलेगा, आपको और 10,000 मिलेंगे, राइट? तो ये है 10,000 जो है आपका, ये है सिंपल इंटरेस्ट, बराबर. क्योंकि आपका वो जो कैपिटल है उसके ऊपर आपको नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट, PNR/100 वाला फॉर्मूला जो है, तो उसके हिसाब से आपको 10% का इंटरेस्ट दे रहा है. अभी समझ लीजिए, आपने जो 1 लाख रुपए डाले थे, उसके बाद आपको 10,000 जो इंटरेस्ट आया था, आपने उसको निकाला नहीं, आपने उसी को ही वापस एफडी बना दिया, नया एफडी बना दिया, राइट? तो आपका 1,10,000 अभी अगले साल जब आएगा, तो आपको 11,000 इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो वो 1,21,000 बन जाएगा. और उस 1,21,000 का आप ऐसे ही करोगे आप, तो आप देखो, आपके 10 साल में आपका 1 लाख जो है वो 2,60,000 बन जाएगा, यस, कंपाउंडेड। कंपाउंडेड. जबकि आपका जो हर महीने, अगर हर साल अगर आप 10,000 निकाल लेते, तो वो 10 साल में आपका सिर्फ 1-2 लाख बन जाता है. तो ये राइट। डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो ये तो सिंपल फंडा है. तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप जितना लॉन्ग टर्म रखोगे, उसमें आपका कंपाउंडिंग ज्यादा होता ट्रू। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि अगर आपने प्राइमरी लेवल से थोड़ा ज्यादा भी मैथ्स करी है, तो हम शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और दूसरों के लिए भी आई थिंक शेयर ट्रेडिंग करके वी कैन मेक मनी. है. बिल्कुल. एंड इंडिया में लीगल एज कितनी है, लाइक 18 अबव, या कौन शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं? नॉर्मली तो या 18 years एंड अबव होना चाहिए आपका, राइट? यू नीड टू बी एन एडल्ट टू बी बेसिकली.
लेकिन मतलब आपके जो मतलब सीखने पे कोई ये नहीं है, हाँ जी। पाबंदी हाँ नहीं जी। है, राइट? आप सीख सकते हो। और डमी अकाउंट्स भी होते हैं, मतलब कोई भी वेबसाइट आप ले लो, इसमें आपको मतलब डमी अकाउंट बना के आप ट्राई ट्राई कर सकते हो पहले, राइट, वंस टू गेट अ कॉन्फिडेंस, राइट। और वो आपके एक बार कॉन्फिडेंस हो जाए, उसके बाद आप शुरू कर सकते हो, राइट। एंड इवन फॉर टीनेजर्स, राइट, इवन इफ यू आर 15 ईयर ओल्ड, यू कैन टेक योर पेरेंट्स अकाउंट एंड डू इट ऑन दैट ना, पेरेंट्स के अकाउंट या में कर एट लीस्ट सकते यू हो। कैन लर्न। आपको छोटा सा एक मतलब छोटा सा अकाउंट आप अपने बच्चों के लिए अलग से बना सकते हो, जिसमें आप उनको मतलब खेलने के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल वंस दे want tried a dummy account and practiced it, they have come to a good level, you can give them a dummy account so that they can do trading of their own also. अगर 15 year old भी है तो they can do, that's what I'm saying. And in fact if you see, uh, मतलब मैं I mean I had Gujarati friends in my when I was growing, they used to talk about the stock market, तभी से ही तो मेरी मेरी क्यूरियोसिटी थी, यस एक्चुअली यस एक्चुअली, हम वहीं तो से अपने शुरू हुई टाइम थी की भाई, बात है कर क्या? रहे हैं। मिस्टर वॉरेन बुफे ने तो 11 साल में वो ऑब्जर्व करने लगे थे, उनके उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन ही वाज 11 years old वो देखने लगे थे। कब के टाइम में 19, वो मतलब 30s के भी पहले का टाइम होगा शायद वो। राइट, राइट, राइट। तो वही है, तो और टीनेजर्स जो है उनका दिमाग काफी शार्प होता है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम बेसिकली टू गिव द राइट फूड फॉर देयर माइंड्स एंड गिव देम द कंसेप्ट्स ऑफ मनी। सी द थिंग इज कि हमारे स्कूल्स में हमको मनी के बारे में सिखाते ही नहीं है, हाउ टू मैनेज अवर मनी, right? यस। Other than, right? And so the thing is, this is the best way as parents we can teach our children about money, how they can compound our money. हमको इससे यही सिखाते हैं कि भाई पढ़ाई करो, जॉब्स करो, लेकिन जॉब्स करने के बाद में जो पैसा आता है उसको पैसे को कैसे मैनेज करना है, अपनी लाइफ को कैसे ट्रू। चलाना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। यस, इट्स नॉट अबाउट हु अर्न्स मोर, इट्स अबाउट हु मैनेजेस द मनी वेल। राइट। इज देयर एनी मैक्सिमम एज लाइक पीपल हु आर रिटायर्ड, वो कितने साल तक इसमें आ सकते हैं, लाइक 60, 65, 70 इन इंडिया? कोई भी एज लिमिट नहीं है, जब तक आपका दिमाग चल रहा है, आप हम्म। मतलब आप समझ सकते हो, तब तक आप मार्केट में आप इन्वेस्टर रह सकते हो। मेरे साथ में जो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो लोग रिटायर्ड हैं, जिनके बच्चों की शादी हो चुकी है, तो वो यस। लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी भी है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि कहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है, कहाँ पे स्टॉक्स चल रही है, स्टॉक आइडिया देते हैं ताकि लोग उसको स्टडी करें, राइट। तो ऐसे एक दूसरे को सपोर्टिंग कम्युनिटी भी है। तो यस। वैसे तो इन जनरल लोगों को मतलब वो कम्युनिटी सपोर्ट होने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप कहाँ रॉन्ग जा रहे हो, राइट। अगर आपने या फिर ओवरऑल मार्केट के बारे में अभी, इवन इफ आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 20-25 years इन द 20 years इन द मार्केट, आई मे बी रॉन्ग समवेयर, राइट, और माय एनालिसिस में बी रॉन्ग, राइट। तो कोई दूसरा पर्सपेक्टिव आपको मिलता है, so it's always good to have different perspectives, new trends going on. So having together support always helps. यस, एग्जैक्टली। सो इट वॉज रियली एन अमेजिंग डिस्कशन। एंड एक चीज मुझे एक एक नया नजरिया इस डिस्कशन से मिला कि इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू समवन एल्स, लाइक इवन इफ यू हैव मीडिएटेड टू इन्वेस्ट योर इन शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, यू शुड नो एजुकेशन की अपने स्टॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप बोलो बिल्कुल नहीं अभी भी मैं नहीं कर सकता, मैं किसी से करवाऊंगा, एटलीस्ट नॉलेज हमको होनी होना चाहिए, चाहिए। आपका जो कि पैसा है, बहुत कम है। आपके पैसे के लिए आपसे बेहतर और कौन केयर करेगा? Exactly. Today, if I have a bag of having 1 lakh rupees cash, I will not hand over it to anyone. Even if I go to like 2 minutes somewhere I'm going, I will not give. But investment, I am giving just on a phone call कि भाई ये है, ये अच्छा है, आप लगा दो. Even the known people, they speak like this. Exactly. That's exactly the irony of it, right? So, Yes, yes. So we should know where our money is being invested, and this is the golden opportunity wherein हम अपना भी पैसा guys लगा सकते हैं, plus हम किसी और के investment से भी we can make money. So we can do it along with your existing job also, business also जो आप कर रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं। Plus जो मैंने बोला कि at least आपका पैसा कहाँ लग रहा है ये तो knowledge आपको होनी ही चाहिए।
बिल्कुल। So yes, it was a lovely discussion, Mr. Salish. So आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? No matter what, you are a student or a housewife, or doing a job or a retired person, there is no right age to start, True. right? And the thing is, in the world that we are living in, uh, financial independence, financial freedom is very important. Whether you Hmm. are a homemaker or whether you are a retired person, आजकल का जमाना ऐसा है जिसमें सैडली आई मीन योर वर्थ इज डिटरमाइंड बाय योर नेटवर्क, राइट? True. तो हर रिश्ते में हम ये देखते हैं, राइट? तो ये जरूरी है कि आपकी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, राइट? आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट रहो वो बेटर है, एंड इट इज गुड फॉर योर ओन कॉन्फिडेंस ऑल्सो। so that is True. why you should know about money. Most in our society people avoid talking about money. हम Hmm. सबको पैसा चाहिए, लेकिन पैसे को मतलब बुरी नजर से देखते हैं कि ये भाई कि एज ए पैसे मनी की इज बात कर इविल। रहे हैं, ये तो पैसे की बात पैसे कर की रहे हैं। बात कर नहीं, पर आजकल पैसा इज लाइक एन ऑक्सीजन, राइट? यू नीड Yes, इट फॉर yes. एवरीथिंग दैट यू डू इन योर लाइफ। अगर वो पैसे अगर अगर आप आपको अच्छा खाना है, पहनना है, घूमना है, फिरना है, आपके एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं, तो ये सब के लिए आपको एक सर्टेन लाइफस्टाइल चाहिए आपको। तो हर एक चीज में पैसा लगता है। आपकी उम्र होगी, उसके बाद आपके हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए भी आपके पास पैसे होनी चाहिए। आपके ओल्ड एज में, आपको रिटायरमेंट में, आपको सस्टेन नाउ योर विद बेटर मेडिकल फैसिलिटीज योर एज इज गेटिंग एज लाइफ स्पैन इज इंक्रीज। Yes. तो आपके पास एक अच्छा कॉर्पस होना जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट से बेहतर और कौन सा जगह है जो आपको और ये रिटर्न दे सकता है? It's true. तो आपको And, इसलिए सीखना चाहिए। अगर आप 60 साल के भी हो आज, तो सीखो। और क्योंकि आप कम से कम और 20 साल तो जियोगे, तो वो 20 साल तक yes. आपका पैसे पैसे आपके चलने चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कि ये नहीं कि आप सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दो, राइट? आपको आपके एज के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है। आपको बाकी एवेन्यूज में भी डालना है, बॉन्ड्स, एफडी वगैरह जो डालना है, डाइवर्सिफाई करना है। और जो जहाँ पे आप जो मैक्सिमम रिटर्न चाहिए वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट, सर्टेन पोर्शन आपको स्टॉक मार्केट में डालना है। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस ले सकते हो, या फिर मेरे पास भी आ सकते हो। तो हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस्टर शैलेश शेट्टी। एंड आगे भी आप ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स में हमसे शेयर करने के लिए अपनी नॉलेज ज़रूर आइए। इट्स रियली गुड, इवन हम एक एज के बाद अगर खुद से नहीं भी कर रहे हैं, किसी को सजेशन देने के लिए भी हमको खुद को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो बहुत Absolutely. अच्छा आज का डिस्कशन था। एंड फॉर व्यूवर्स विल गिव द डिटेल्स ऑफ मिस्टर शैलेश शेट्टी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगेन मैं बोलूंगी मिस्टर प्लस हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट। सो प्लीज आप इनके जो डिटेल्स नीचे दिए हैं उस पर जाके चेक जरूर करिएगा एक बार। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट हिम फॉर फर्दर हाउ यू कैन लाइक ज्वाइन द कोचिंग कोर्सेज एंड ऑल। सो थैंक यू शैलेश सर, थैंक यू सो मच, गुड टू Thank you, Ankita मीट ji. यू। Thank थैंक यू, you, Kriti ji. It's a pleasure talking to you and to your audience as well. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।